Good morning, everyone. So, for understanding the next topics of our chapter, we will be doing what? We will be creating a data frame structure, and I will be creating it on my laptop, and I will share its screen so that we can have a proper understanding that how these all can be created. All right. So, let us first understand this, and then we will begin. So, which data frame should we create? So, the data frame that will be useful, that data frame we will be using. So, this is the data frame that we will be creating right now on Spider. All right. So, as you can see in this data frame, that we are having a data frame named DTF5. We will also name the data frame as the same so that it remains easy for us to understand the further topics of this chapter. Now, as you can see, the column names are population, hospitals, and schools, and the indexes are Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. And there are some values which are given over there. So I will be doing what? I will be creating a program, and we will see whether we can create this data frame on our computers or not. Okay, so what I will do, I will create a dictionary. All right. And what all dictionaries I will create? I will create one dictionary that will be called as population. Let me mark it and show you. Okay, I will create one dictionary that will be named as population. All right, this one. कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, it will be understood. We will create one dictionary called population, and next we will create dictionary called hospitals, and next we will create dictionary called schools. So we will be creating dictionaries, and we will be placing values like population is to 10927986, then population is to 1269. So this way we will be creating this. Okay, let us go through directly to the spider and then understand the things, so that will make you more clear to the topic. Okay, so okay, now I am on spider. The first and foremost thing that we need to do is import pandas as pd. ठीक है, import pandas as pd. मैं अभी numpy import नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी एरेज का यूज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए ठीक है। यहाँ पर मुझे कितनी नंबर ऑफ, एक मिनट इसको देखते हैं हम कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो मेरे पास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, जब मेरे पास 4 नंबर ऑफ रोज हैं तो मुझे उतने ही वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं पहले एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ D1। D1 में की वैल्यू पेयर होगा, तो मेरी की वैल्यू क्या है? की मतलब क्या? जो कॉलम का नाम आएगा। तो मेरे कॉलम का नाम आएगा पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन इस टू वैल्यू, तो वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पर? तो देखते हैं हम, वैल्यू डालनी है 10927986। ठीक है, तो वैल्यू डालते हैं 10927986। अगली चीज कॉमा लगाते हैं। उसके बाद अगला की वैल्यू पेयर क्या है? तो अगला की वैल्यू हॉस्पिटल्स है 189। ठीक है, तो यहाँ पर अगला मेरा की वैल्यू पेयर होगा हॉस्पिटल्स इज टू 189। अगला मेरा की वैल्यू पेयर क्या है? अगला है स्कूल्स और 7916। तो यहाँ पर स्कूल्स इज टू, सॉरी बाहर रहेगा, इज टू 7916। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कौन सा पहला डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, पहले इसको समझो। ये वाला मेरा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। मैं थोड़ा मार्क करके बताने की कोशिश करता हूँ आपको कौन सा वाला डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये वाला डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ये जो पूरी लाइन है ना, ये एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है।
सिमिलरली ऐसा का ऐसा ये भी क्रिएट होगा, ये भी क्रिएट होगा और ये भी क्रिएट होगा। तो मुझे 3 बार और इन वैल्यूज को लिखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, इनको कर लेता हूँ कॉपी। ये जो मेरी लाइन है, सॉरी ये अभी मैंने यहाँ से हटाया नहीं है, मार्किंग पे ही है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी यहाँ पर इंपोर्ट पांडाज एज पीडी में एरर आ रही है। तो वो देखो यहाँ पर एरो बना हुआ है, वो ये जो एरर ये बोल रहा है कि आपने अभी जो इंपोर्ट किया है उसको यूज नहीं किया। पांडाज एज पीडी इज इम्पोर्टेड बट नॉट यूज्ड। हम जब तक प्रोग्राम बनाएंगे तो वो यूज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस एरर से घबराना नहीं है, आने दो उस एरर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर इसको 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। चारों के नाम थोड़े से चेंज कर देता हूँ। एक का नाम D1 दिया है, तो D2, D3, D4 चारों नाम दे दिए। अब पॉपुलेशन की वैल्यू सबकी अलग आएगी, तो ये कॉलम को खाली कर लेते हैं। और सेकंड वाले में पॉपुलेशन की वैल्यू क्या आती आ रही है वो देख लेते हैं। 12691836, 12691836। अगले में क्या आ रही है, अगले में आ रही है 4631,392। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, 4631,392। और लास्ट में इन्होंने क्या लिख रखी है, 4328063। 4328063। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो जगह पर इंटेंशनल एरर्स भी करूंगा ताकि क्लियर रहे कि हम क्या गलतियां भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 208, 149 और 157। तो 208, 149 और 157, 208, 149, 157 सही है। यहाँ पर वैल्यूज चेंज करते हैं 7916 के बाद। यहाँ पर क्या वैल्यू है, 85087226, 8508 7226। और लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 7617। तो 7617 ये मैंने वैल्यूज इंपोर्ट कर दी। अब बात समझना, 4 मेरी डिक्शनरीज बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इन चारों डिक्शनरीज को एक लिस्ट में सेव कर देता हूं। तो मैं lst1 नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं जो कि मेरी एक लिस्ट है। इसमें मैं चारों डिक्शनरीज को सेव कर दूंगा। डिक्शनरी को सेव करना है तो लिस्ट कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए, वैल्यूज डाल देता हूँ D1, D2, D3, D4। ये बन गए मेरे 4 डिक्शनरीज। चारों डिक्शनरीज को लिस्ट में इंपोर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए पहले तो देखो, पहले क्या करना पड़ेगा, ये लिस्ट जो है ये list1 बन गई मेरी। अब इस list1 का मुझे डेटा फ्रेम बनाना है। मतलब ये list1 के अंदर जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज का यूज करके मुझे डेटा फ्रेम बनाना है। तो वहां पर क्या नाम है, DTF5 है ना, क्या नाम है, DTF5। तो अपन भी DTF5 नाम ले लेते हैं और इसको यूज कर लेते हैं pd.data फ्रेम फंक्शन। और इस डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल देते हैं LST। और इसको प्रिंट करना है तो लगा देंगे प्रिंट फंक्शन और लिख देंगे DTF5। इसको मैं अब रन करके देखता हूं कि आउटपुट क्या आ रहा है और क्या आउटपुट वैसा है जैसा हम चाहते हैं। सबसे पहले तो रन करते हैं, आएगी एक एरर, उसको समझते हैं कि वो क्यों आई। मैंने प्रोग्राम को किया रन। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, आप देखोगे ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। जस्ट वेट अ मिनट, एग्जीक्यूट हो गया है। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये मैं स्क्रीन, साइड वाली स्क्रीन को थोड़ा रेडी रखता हूँ ताकि यहाँ पर हम एरर देख सकें और समझ सकें कि एरर क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जस्ट वेट, अभी रन हो रहा है प्रोग्राम। हाँ ठीक है, एरर आई, ये एरर आई, देखो कितनी बड़ी एरर आई। लास्ट लाइन को रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूल पांडास हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड डेटा फ्रेम। मतलब ये जो मैंने डेटा फ्रेम लिखा ना, इसमें कुछ गलती है ऐसा बोल रहा है वो। पांडास इसको डेटा फ्रेम को पहचानता ही नहीं है। तो इस डेटा फ्रेम में क्या गलती हो सकती है, तो यहाँ पर ये कैमल केसिंग में लिखा जाता है
और यहाँ पर जो डेटा फ्रेम मैंने लिखा है, ये जो डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन लगाया है, वहां पर डी तो मैंने कैपिटल कर दिया, पर मैंने एफ कैपिटल नहीं किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लिखना था, डेटा फ्रेम फंक्शन। ठीक है, अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। ये मैं गया रन पे, मैंने प्रोग्राम को किया एग्जीक्यूट, और यहाँ पर आया नीचे। अब बोल रहा है नेम एल एस टी इज नॉट डिफाइंड। एल एस टी में कुछ गड़बड़ है, चलो देखते हैं। एल एस टी एल एस टी एल एस टी, अच्छा ये एल एस टी डिफाइन नहीं किया है। यहाँ ऊपर क्या नाम दिया, एल एस टी वन नाम दिया ना, देखो यहाँ पर मैंने क्या नाम दिया है, एल एस टी वन। जहाँ यहाँ पर मैंने एल एस टी वन नाम दिया है, तो नीचे भी मुझे एल एस टी वन लिखना पड़ेगा ना। तो चलो इसको नाम दे दिया एल एस टी वन। अब मैं फिर से ये F5 दबा रहा हूँ और प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। देखो मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, मैं कॉर्नर वाली स्क्रीन पे आता हूँ, ये देखो ये मेरा प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूट, ये बन गया मेरा डेटा। पर क्या ये डेटा फ्रेम एग्जैक्टली वैसा है जैसा मुझे चाहिए? ये जो आपको डेटा फ्रेम दिख रहा है, क्या ये डेटा फ्रेम एग्जैक्टली वैसा है जैसा आपको चाहिए? एक बार उसको मैच करते हैं हम। हाँ देखो यहाँ पर इसको देखो, पॉपुलेशन लिखा आ रहा है, हॉस्पिटल्स लिखा आ रहा है, स्कूल्स लिखा आ रहा है, ये चीजों में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में रखता हूँ ताकि हम उसको साइड बाय साइड देखकर समझ सके कि वो चीजें क्या हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा, दोनों वैल्यूज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों चीजें एक साथ दिख जाए। ठीक, वेट अ मिनट, तो वहां पर, अरे मैंने इसको एनलार्ज कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे एक चीज जो कमी दिख रही है, यहाँ पर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई लिखा है, और मेरे इंडेक्स में देखो क्या लिखा है, 0123। मतलब अभी ये पूरा का पूरा वैसा नहीं बना है जैसा हमको DTF5 में दिख रहा है। यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक इंडेक्स ले लिए हैं, और यहाँ पर अगर आप पीछे की स्क्रीन देखो जहाँ पे पांडास दिख रहा है, तो वहां पर देखना आप, वहां पर 0123 इंडेक्स दिख रहे हैं। तो मेरे अभी इंडेक्स की वैल्यू गलत आई है ना। दिल्ली मुंबई चेन्नई और ये जो इंडेक्स आना था, ये इंडेक्स अभी मुझे लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है ना। मतलब ये देखो यहाँ पर 0123 है, मतलब इंडेक्सिंग अभी नहीं हुई है। तो इंडेक्सिंग अब मैं कैसे करूं, तो चलो देखते हैं। जहां पर आप लोगों ने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, ये LST1, जहां पर आप लोग ये डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो, वहां पे आप लोग इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और लिस्ट में पास कर देता हूँ इंडेक्स की वैल्यू। पहली वैल्यू क्या है, तो पहली वैल्यू है दिल्ली, कॉमा, ब्रैकेट के बाहर इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू है मुंबई, उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है कोलकाता और कॉमा, और लास्ट वैल्यू है चेन्नई। ये मैंने सारी वैल्यूज इनपुट कर दी। अब एक बार हम ये वाली स्क्रीन की तरफ आते हैं, और इस स्क्रीन की तरफ आने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैंने दबाया F5, प्रोग्राम हुआ मेरा एग्जीक्यूट। ये देखो, अब दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, और जो ये आपका यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, ये अब एग्जैक्टली वैसा है जैसा हम चाह रहे थे। देखो इसको मैं अब इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ आजू बाजू में। अब आप देख सकते हो दोनों को, जो डेटा फ्रेम हमको बनाना था और जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है, ये एग्जैक्टली सेम बनकर आया है। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम बनकर आया है, और सारी चीजें आप मैच कर सकते हो। यहाँ पर भी वो सब वैसी ही लिखी हुई है जैसी हम लोगों को चाहिए थी। ऑलराइट, तो ये देखो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है और दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज द वे यूजिंग विच हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी जो आप लोगों को स्क्रीन आपके कंप्यूटर्स पर दिख रही है, आपके मोबाइल्स पर दिख रही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर समझो कि हमने ये
डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, ये डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया है ये हमको समझना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑलराइट, तो ये थोड़ी सी हमारी जानकारी में रहना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, कुछ और टॉपिक्स देखता हूँ, अगर इसके थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं तो, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम ही आज के लिए काफी रहेगा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, आगे के टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ फटाफट, क्योंकि हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है और ये डेटा फ्रेम का आउटपुट भी हमारे पास आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पर एक बार और रन कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और ये अभी जो आप लोगों को साइड में स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका ये आउटपुट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जो आगे के टॉपिक्स हैं मैं पीडीएफ में से आप लोगों को पढ़ाते जाता हूँ। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये मेरा जो डेटा फ्रेम बना है, मुझे इस डेटा फ्रेम में से अगर सिर्फ एक सिलेक्टेड कॉलम को ही अगर एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जब मुझे एक किसी सिलेक्टेड कॉलम को एक्सेस करना होता है तो मैं अब देखो आई पाइथन कंसोल पे वर्क कर रहा हूँ। आई पाइथन कंसोल वाली स्क्रीन पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, DTF5 और ऐसा लिखकर, क्योंकि ये मेरे एक टेबल का, ये डेटा स्ट्रक्चर का नाम है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ मेरे कॉलम की वैल्यू जो मुझे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे लिख दिया पॉपुलेशन, इसको क्लोज किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर आप देखोगे मैंने एंटर दबाया तो आप देख सकते हो कि मुझे ये DTF5 और पॉपुलेशन लिखने पर सिर्फ किस कॉलम की वैल्यू आई है, मुझे ये पॉपुलेशन नाम के कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द वे यूजिंग विच यू कैन डिस्प्ले ओनली और डिस्प्ले और एक्सेस ओनली वन ऑफ द कॉलम्स फ्रॉम ऑल द डेटा फ्रेम्स। अगर मुझे इसमें से सिर्फ हॉस्पिटल को डिस्प्ले करना होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, तो मैंने जो ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैं DTF5 के बाद यहाँ पर लिखता हॉस्पिटल्स और इसको एग्जीक्यूट कर देता, तो मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की वैल्यू आ जाती। और अगर मुझे यहाँ पर स्कूल्स को एग्जीक्यूट करना होता तो मैं यहाँ पर स्कूल्स लिख देता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्कूल्स, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्कूल्स का आउटपुट भी मुझे देखने को मिल गया। ऑलराइट, सो दिस इज द वे यूजिंग विच यू कैन एक्सेस सम पर्टिकुलर कॉलम्स, है ना। ये हो गया एक तरीका। अब इन्हीं को एक्सेस करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि आप अभी DTF5 लिख रहे थे और आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे, अब हम बिना स्क्वायर ब्रैकेट लगाए वी कैन ऑल्सो यूज डॉट नोटेशन। अब डॉट नोटेशन यूज करते टाइम आपको सिंपली कॉलम का नाम लिखना होता है, कोई सिंगल कोट या कुछ नहीं लगाना होता है। तो मैंने ऐसा लिख दिया DTF5 डॉट पॉपुलेशन, तो देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसने पॉपुलेशन कॉलम को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिख दूं DTF5 डॉट हॉस्पिटल्स, देखो H कैपिटल लिख रहा हूं तो मैं H कैपिटल ही लिख रहा हूं, और यहाँ पर लिख दूं अगर DTF5 डॉट स्कूल्स, एस कैपिटल था तो एस कैपिटल ही है, तो ये देखो ये उसने स्कूल्स मुझे प्रिंट कर दे दिए। तो इस तरीके से आप एक किसी कॉलम को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को, ये तो सिंगल कॉलम की बात हो गई, अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, अरे तो क्या करेंगे, ये देखो ये आपका जैसे एक था ना जहां पर आपने एक प्रिंट किया था, यहाँ पर आप सिंपली कॉमा लगाओ और कॉमा लगाने के बाद हॉस्पिटल्स की वैल्यू भी पास कर दो। ठीक है, ये मैंने हॉस्पिटल्स की वैल्यू पास कर दी, ये इसको क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया। ओके, सम एरर, लेट मी फाइंड इट आउट। हाँ, यहाँ पर जब आप इस तरीके से एक से ज्यादा वैल्यूज पास करते हो तो एक से ज्यादा वैल्यूज पास करते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और एंटर दबाया। अब आप देखो मुझे पॉपुलेशन और हॉस्पिटल्स दोनों की वैल्यू प्रिंट होकर दिख रही है। अगर मुझे सिर्फ पॉपुलेशन और स्कूल्स की वैल्यू प्रिंट करनी होती तो मैं इस तरीके से लिख देता, तो मुझे
पॉपुलेशन और स्कूल्स की वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाती है। मतलब सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम कैसे प्रिंट करते हैं ये चीज हमने देख ली। ठीक है, अब एक और बात देखना, इसमें एक एग्जांपल नंबर 31 दिया हुआ है बुक में, उसको आप खुद समझ कर देखना कि क्या आपको वो एग्जांपल नंबर 31 खुद से बन जाएगा या नहीं। ठीक है, अगर यही चीज अगर आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करनी होती है, मतलब कि टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर लिखकर एग्जीक्यूट करना होता है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, DTF5 डॉट पॉपुलेशन, जैसे कि मुझे पॉपुलेशन नाम के कॉलम को एग्जीक्यूट करना है। तो ठीक है, अब इसको रन कर दो, DTF5 डॉट पॉपुलेशन लिख दिया। एक मिनट, यहाँ पर आया मैं और पॉपुलेशन सही है, इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर आई पाइथन कंसोल तो एग्जीक्यूट कर लेता है इस तरीके से, बट जब आप यहाँ पर मेन टेक्स्ट एडिटर में काम करते हो तो आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ता है। जब तक आप प्रिंट फंक्शन नहीं लगाओगे तब तक आप आंसर्स को प्रिंट नहीं कर सकते। देखो अब आंसर प्रिंट हो गया, नीचे दिख रहा है ये दिल्ली और मुंबई कोलकाता चेन्नई, तो ये इस तरीके से पॉपुलेशन अब उसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पर जब आप वर्क करते हो, मतलब कि ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर होता है, इस विंडो पे वर्क करते हो तो आपको प्रिंट फंक्शन भी लगाना पड़ता है। जबकि आप अगर यहाँ पर साइड में वर्क कर रहे होते तो ये साइड में जो आई पाइथन कंसोल जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर वर्क करने के लिए आपको DTF5 डॉट पॉपुलेशन सिंपल बस आप इतना भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सिर्फ इतना भी लिखूंगा तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये हुई एक बात। अब और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अगर हमको अब कुछ और सबसेट्स, कुछ और ज्यादा वैल्यूज डिस्प्ले करना हो, ये तो एक कॉलम डिस्प्ले करना था तो चलो एक कॉलम डिस्प्ले कर लिया, एक दो कॉलम्स डिस्प्ले करना थे तो चलो दो कॉलम्स भी डिस्प्ले कर लिए। बट अगर हमको कुछ अलग सेट ऑफ वैल्यूज डिस्प्ले करना हो तो हम क्या करेंगे, तो जब अलग सेट ऑफ वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी होती हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, डेटा फ्रेम 5, ये तो मेरा DTF5 नाम है, जिसको बोलते हैं LOC फंक्शन। नाम आपको ध्यान रखना होगा, जिसको कहा जाता है LOC फंक्शन। ठीक है, इस LOC फंक्शन को जब आप यूज करोगे तो ये जो फंक्शन होता है ये एक लोकेशन फंक्शन कहलाता है। मैं इसी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन रखता हूँ ताकि हम लोग समझ सके हम क्या कर रहे हैं। और इस LOC फंक्शन के अंदर जो है लॉक लोकेशन फंक्शन जो होता है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज पास करोगे अब वो वैल्यूज अब आपको डिस्प्ले होने लगेंगी। जैसे कि अभी आपने कॉलम डिस्प्ले किया था तो कॉलम के लिए आपने क्या किया, सिंपली कॉलम का नाम लिख लिया। अब आपको जब सिंपली किन्हीं रोज को डिस्प्ले करना हो या किन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ रोज को डिस्प्ले करना हो तो वहां पर सिंपली आप इंडेक्स का नाम लिख के काम नहीं कर सकते। वहां पर एक अलग से फंक्शन दिया हुआ है जिसको बोला गया है LOC फंक्शन। अब इस LOC फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में अब आप कोई वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे देखो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं दिल्ली, तो दिल्ली पास करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो देखो क्या होता है, ये दे रहा है कुछ एरर, नो एक्सेस नेम्ड दिल्ली फॉर टाइप क्लास पांडास। यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जब कभी हम लोकेशन फंक्शन यूज करते हैं तो लोकेशन फंक्शन के यूज करते टाइम यहाँ पर जब आप किसी कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। जैसे कि किसी रो को, सॉरी, किसी रो को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस रो का नाम लिखना पड़ता है और फिर कॉमा लगाकर आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, कोलन का साइन लगाना पड़ता है। लोकेशन फंक्शन का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे दो। तो स्टार्टिंग वैल्यू आपने दे दी दिल्ली, उसके सिवा कोई चीज नहीं देनी थी, तो एंडिंग वैल्यू की जगह आपने सिंपली लिख दिया कोलन। और अब आप इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये लोक फंक्शन नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो इसने दिल्ली की पॉपुलेशन बता दी, दिल्ली में कितने हॉस्पिटल्स है वो बता दिए, और दिल्ली में कितने स्कूल्स हैं वो भी बता दिया। बट अब अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज डिस्प्ले करना होती
तो मैं ये यहाँ पर क्या करता, दिल्ली कॉमा और लिखता मुंबई कॉमा, उसके बाद कुछ और नहीं है तो इस तरीके से कोलन लगा के क्लोज कर देता और वैल्यूज को प्रिंट कर देता। सॉरी, टू मैनी इंडेक्सेस, कुछ एरर आई है, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ कि ये एरर क्यों है और फिर आगे हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब एक से ज्यादा वैल्यू देनी होती है तो कॉमा नहीं लगता है, कॉमा की बजाय कोलन लगता है और फिर एंटर दबा दोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली के स्कूल्स, मुंबई की पॉपुलेशन, मुंबई के हॉस्पिटल्स और मुंबई के स्कूल्स। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वैल्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, है ना। थोड़ा सा लॉक फंक्शन जो है, लोकेशन फंक्शन जो है, इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखने जैसी है। जैसे कि इनिशियल वैल्यू देते हैं तो इनिशियल वैल्यू दे देने के बाद हमको, जैसे कोई वैल्यू दी तो ये वैल्यू दे देने के बाद भी हमको क्या करना पड़ता है, ये वैल्यूज को देने के बाद भी हमको लास्ट में ये कॉमा लगाकर कोलोन लगाना होता है। बट देखो यहाँ पर अगर मैं दिल्ली और दे दूं चेन्नई, देखना क्या होगा। मैंने दिल्ली के साथ दे दिया चेन्नई और एंटर प्रेस किया तो देखो आंसर क्या आया, आउटपुट क्या देना था उसको, दिल्ली और चेन्नई मैंने इनपुट दिया ना, तो मुझे उसको क्या देना था, दिल्ली और चेन्नई की वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करनी थी। बट इन्होंने क्या किया, मुझे दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। मतलब ये लोकेशन फंक्शन क्या करता है, ये लोकेशन फंक्शन एक रो को डिस्प्ले करना है तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा रो को डिस्प्ले करना है और अगर वो एक रो सबसे ऊपर है और दूसरी रो सबसे नीचे है, तो जब आप इन रोज को डिफाइन करोगे तो वो उसके बीच में आने वाली जितनी भी रोज होंगी उन सब को भी डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर सिर्फ दिल्ली और चेन्नई नहीं प्रिंट करेगा, ये दिल्ली और चेन्नई के बीच में और भी जितने रोज आ रहे हैं उनको भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो फिर अब मुझे बताओ कि अगर ऐसा नहीं करना हो और मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव ही वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए हैं हमको, जिनका यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। अभी तो शायद मेरे को थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा कि कितना टाइम हो चुका है इस क्लास को। वेट अ मिनट, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। चलिए देखिए, अगर मैं इस तरीके का कोड कुछ लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने कोड लिखा, हाँ ये दिल्ली से मुंबई, और ये मैंने जैसे कोड लिखा तो ये देखो इस तरीके का आउटपुट मुझे जनरेट होकर मिला। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिल्ली और मुंबई लिखा तो दिल्ली और मुंबई के आउटपुट मिला, पर यहाँ पर जो मैंने कॉमा लगाकर ये कोलन लगाया है, ये जो कॉमा लगाकर ये कोलन लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली और मुंबई के जितने कॉलम्स हैं सारे प्रिंट कर दो, है ना। ये कॉमा लगाकर ये जो कोलन लगा दिया मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं बताई, मतलब कि सारी वैल्यूज प्रिंट कर दो। किस किस की, दिल्ली इज टू मुंबई की। बट अगर मैं यहां पर मिटा के लिख दूं स्कूल्स, मतलब अब सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं करना है, अब क्या प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स। और अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो अब आप देख सकते हो यहां पर क्या क्या आउटपुट्स आए, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई के स्कूल्स आए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक आउटपुट जनरेट करो जिसमें कोलकाता और चेन्नई के सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दिल्ली को मिटाकर लिखते हैं कोलकाता, क्योंकि हमको कोलकाता के चाहिए हैं, तो ये मैंने लिख दिया कोलकाता। मुंबई नहीं चाहिए, चेन्नई चाहिए है, तो मैंने यहाँ लिख दिया चेन्नई। और क्या चाहिए मुझे, इनके हॉस्पिटल्स कितने हैं वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल्स। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे कोलकाता में 149 हॉस्पिटल्स है, चेन्नई में 157 हॉस्पिटल्स है। तो इस तरीके से आप ये मशीन लर्निंग या जो एक प्रोसेस होती है लर्निंग की, इसको भी यूज कर सकते हो। मैं अभी आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को जो मैंने आज समझाया है इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज रहा हूँ और ये वीडियो
का लिंक आप लोगों के पास रहेगा, तो आप लोग जब चाहे तब जो टॉपिक्स हैं इनको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, और बुकिश लैंग्वेज में अगर देखना हो तो आप इनको भी वहां पर देख सकते हो। ओके, so thank you students. You can ask your doubts once you when go through all these topics and just ask me. Okay, thank you students, see you in the next class.